Hello everybody. So now I have come you to describe about the cross section of the heart. Already we have discussed about the four chambered heart, how the movement of the blood flow takes place from all the important blood vessels, pulmonary arteries. और एक बार आपको याद दिला देती हूँ, ब्लड यहाँ से आया, राइट ऑरिकल में एंटर हुआ. राइट ऑरिकल में किसके थ्रू से एंटर होगा? 3 blood vessels or 3 important veins, superior vena cava, inferior vena cava and coronary sinus, right? So same thing, I will describe the same thing here in this heart, cross section of the heart. I am starting again from the right side of the heart. This is the auricle part, this is the ventricle part, here also auricle and this is the ventricle. Okay, this one again, let me show you, this is the left side of our heart and this is the right side of our heart. As you can see, I have drawn red part here. This one carries the oxygenated blood, ये deoxygenated blood. अब मैं इसी चीज को आपको यहाँ पे रिलेट करके बता देती हूँ. चलो, we will start the circulation. ब्लड का मूवमेंट कैसे होता है, how the blood moves. Now this part, as you can see, this is the superior and this one is the inferior vena cava. Okay, so this superior and inferior vena cava brings the deoxygenated blood to the auricle part. जब वो auricle में आता है, it fills up and these are the walls. I told you these are the walls here which allow it to push and to enter in the ventricle. ठीक है? These valves, can you see? I have made this red color of zigzag line. ये है एक तरह का tendon और we say chordae tendineae. So this tendineae pushes, ऐसा खींचेगा और ये हमारा valves open हो जाएगा. ओपन होने के बाद ब्लड फ्रॉम द राइट ऑरिकल इट विल मूव टू द लेफ्ट टू द राइट वेंट्रिकल. ये फिल हो जाएगा. जब ये फिल होता है अगेन ये क्लोज होने के बाद वेंट्रिकल विल गेट फिल्ड अप विथ द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वो फिल होने के बाद इट विल पुश द valves to open and to move to the blood vessels. Now this one you can see the walls which I have shown you here. So this walls and this walls are the same. ये वाला हमारा vessel यहाँ पे गया and that vessel gets again, valves get open, right? वो बैक फ्लो नहीं कर पाता है, वो ब्लड को एक ही डायरेक्शन में लेके जाएगा. अगर ब्लैक फ्लो होगा तो वो फिर से बंद हो जाता है. What are these valves? These are the semilunar valves. These are the semilunar valves. Semilunar valves because it's in the shape of the lunar, moon के जैसे. So the deoxygenated blood goes for the purification to the lungs. When it goes to the lungs, oxygen वहाँ पे पहुँचता है, diffuse होता है blood के साथ and it become oxygenated, right? That oxygenated blood will come to the pulmonary vein. Here you can relate the two. Pulmonary vein, this is the pulmonary. अब वो vein के through से हमारे lungs में वो oxygenated हुआ and it came to the pulmonary vein. Pulmonary vein brings the oxygenated blood to the which side? To the left side of the heart. ठीक है, याद रखो लेफ्ट साइड हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मूव करवाता है. लेफ्ट साइड में आ गया हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड. फर्स्ट वो कहाँ आएगा? ऑरिकल में. ऑरिकल में आ जाता है. आने के बाद यहाँ पे अगेन वेल्स है और सब ब्लड वेसल्स में वी विल फाइंड दी वेल्स आर देयर. सो ये फिल हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड से. जब वो पूरा फिल हो जाएगा इट विल पुश दी ब्लड टू दी वेंट्रिकल. ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल. अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के लिए उसे वेल्व से परमिशन लेना पड़ेगा एंड दिस वेल्व्स अगेन आर कनेक्टेड विद द कॉर्डी टेंडिनी. वो खींचेगा.
राइट. इस वॉल्स को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल. दिस आर द बाइकस्पिड वॉल्स. फिल होने के बाद व्हाट विल हैपन, एक पुश चाहिए, उसको एक फ्लो चाहिए, प्रेशर चाहिए ताकि वो पूरे बॉडी में ब्लड को अच्छे से स्प्रेड कर सके, पहुंचा सके. सो ये एक पुश, एक प्रेशर के साथ निकलता है हमारे सबसे लार्जेस्ट आर्टरी, दैट इज द आयोटा. अब हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, क्योंकि पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचाना है, तो वो एक बहुत हाई प्रेशर या प्रेशर के साथ ब्लड को दबाएगा. हार्ट अपने आप को ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करेगा. कॉन्ट्रैक्ट करने से इट रीचेस टू द आयोटा एंड आयोटा कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. ओके, यहाँ पे बॉडी पार्ट्स में पहुँच गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड. अब सब बॉडी पार्ट्स को मिल गया थ्रू दी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट. वहाँ पे बॉडी ने उसको यूज़ अप किया, ऑक्सीजन को यूज़ किया. जितना वेस्ट था या कार्बन डाइऑक्साइड, दैट पार्ट इट विल बी अगेन एब्सॉर्ब बाय दी और डिफ्यूज्ड इन द ब्लड सेल्स. अब हमारा ब्लड बन जाता है कार्बोक्सी, और क्या बोल सकते हैं उसको, डीऑक्सीजनेटेड. दैट मीन्स ऑक्सीजन कम है, काफ़ी कम है. वो ब्लड हमारा कहाँ से, फिर हमारे ब्लड और एक ब्लड वेसल्स या वेन्स में कैरी करेगा. एंड दैट वेन्स आर कॉल्ड द इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा. सो ये वाला आयोटा लेके गया बॉडी में, बॉडी ने उसको ऑक्सीजन को यूज़ किया. फिर ऑक्सीजन यूज्ड अप होने के बाद उसमें ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है और वो रिटर्न कर देता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इंफीरियर एंड सुपीरियर वेना कावा को वापस देते हैं. देखो यहाँ पे ब्लू कलर के एरोज मीन्स इसमें ऑक्सीजन कम है. और ये फिर कहाँ आएगा, हमारे राइट साइड ऑफ द हार्ट. उसके बाद वो उसको लंग्स में लेके जाएगा फर्दर ऑक्सीजनेशन के लिए. सो दिस इज द बेसिक थिंग. Now you can see a green or part in the heart. What is that? This is the septum, and we can say this is the cardiac muscles. ये कार्डियक मसल्स का काम क्या होता है, इतना जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, हार्ट हैज़ टू बियर दिस कॉन्ट्रैक्शन. फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, इतना प्रेशर को सहने के लिए उसमें इतना मोटा लेयर कार्डियक मसल्स होता है. एंड दिस इज द इनवॉलेंटरी मसल, मतलब अपने आप वो रिदमिक वे में मूव करता है, कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड करता है. सो इसका लेयर काफ़ी मोटा होता है, एज यू कैन सी. एंड दिस layer also divides the left and the right side of the heart, right? And what we say, this is called the interventricular septum. This is a septum. ये divider है, septum है. And pericardium I have written because these are the layers of the cardiac muscle. 3 layers are there. Peri मतलब बाहर वाला, मायो बीच वाला लेयर होता है कार्डियक मसल का, एंड एपिकार्डियम अंदर होता है. सो लाइक दिस वी हैव 3 cardiac muscles, okay, which covers the heart. Something I have left, no. So this is the total system of the heart. Just remember, pacemaker is the impulse for the contraction of the auricle. Semilunar valves are present in the ventricular part here. These are the semilunar valves. These 2 are the semilunar valves, right? And I can say these are the tricuspid and bicuspid valves for the movement of the deoxygenated and the oxygenated blood. So this is all about the circulatory system. You just see again and again this video, you will understand it better. Hope you have understood the 2 systems. You can correlate the 2 systems and video बार बार देखो ताकि आपको समझ आ जाएगा. Okay.